Hello everyone, this is Varun Goyal, your maths teacher. Welcome to my YouTube channel Way to Maths. So now, in the second part of integral chapter, we will start with the exercise 7.6, question number 1. This exercise is based on integration by parts. So 7.6 exercise start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ basic ਜੋ rules ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ rule ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I late। I late ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? I ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਗਰਿਥਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਆਈ ਲੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ डी डी एक्स ऑफ फस्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सैकेंड फंक्शन की डी एक्स, तो उस तो बाद ब्रैकेटेड एक डी एक्स आ वाले इंटीग्रेशन साइन का। तो इतों एक्स एज इट इज़ साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आएगी अपने को कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटैग्रल डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन होंगी अपने को माइनस द कॉस एक्स। तो इतने की आएगा अपने को प्लस द साइन हो जाएगा, इतने आएगा डी एक्स। तो यदा आंसर आएगा माइनस द एक्स कॉस एक्स प्लस cos x the integration exactly sin x plus c. So this will be the answer of your question number 1. I hope so you may understand the rule ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਲੌਗ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਲੌਗ ਆ ਲੌਗ ਵਾ ਅਤੇ ਆ ਅਲਜੈਬਰਿਕ। ਲੌਗ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਗ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਦਿਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਡੀ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਸੌਰੀ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੌਗ ਐਕਸ ਡੀ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਲੌਗ ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਡੀ ਐਕਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਡੀ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡਡ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ log x ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਬਾਈ 3 ਮਾਈਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ log x ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ 1 ਬਾਈ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਬਾਈ 3 ਨਾਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਡੀ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log ਆਫ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਬਾਈ 3 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਬਚਿਆ। ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक्स क्यूब बाई 3 तो एक 3 अपने को ऑलरेडी बाहर पे प्लस सी आ 3 नाल 3 भी कट्टिया गया तो अपने को की बचे log x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। ये सी थोड़ा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है जी। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टू बी क्लीयर टू यू ऑल। नैक्सट अपने को क्वेश्चन आंदा क्वेश्चन नंबर 8 एक्स टैन इनवर्स एक्स एक्स टैन इनवर्स एक्स। तो यदी इंटीग्रेशन किमें करेंगे, इनवर्स फंक्शन में पहला मानते होंगे, अल्जैबरिक अपना दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो देखो टैन इनवर्स एक्स एज इट इज़ इंटैग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटैग्रल का साइन आएगा डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इंटैग्रल ऑफ फस्ट सैकेंड फंक्शन डी एक्स से एक आउटसाइडेड अपने को इंटैग्रल का डी एक्स। तो हूँ इतने रिजल्ट की आएगा टैन इनवर्स एक्स। तो इंटैग्रल ऑफ एक्स कितना आएगा एक्स स्केयर बाय 2 माइनस डेरीवेटिव टैन इनवर्स एक्स का कितना होंगे 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो यदि इंटीग्रेशन कितनी आएगी अपने को एक्स स्केयर बाय 2, ठीक है जी। ये आ गई अपने को इतनी इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाय 2 तो नाल की आएगा अपने को डी एक्स। देखो आउटसाइडेड तो सॉल्व डी है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हूँ इनू किमें सॉल्व करना 1 प्लस एक्स स्केयर उपर भी एक्स स्केयर है 1/2 तो आप बाहर भी लिख लाँगे। तो हूँ इनू सॉल्व करने के लिए मैं की करूँगा, देखो एक्स स्केयर बाय 2 टैन इनवर्स एक्स माइनस इंटैग्रल
आ जो एक्स स्केयर है ना ये मैं 1 ऐड किया ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर 1/2 इत्थे लिख लो, ठीक है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर इत्थे डी एक्स, ये भी इंटीग्रेशन सैपरेट कर देने, इत्थे भी डी एक्स कर देने, 1/2 सारे दे नाल मल्टीप्लाइड है, तो इत्थे आ गया एक्स स्केयर बाई 2 टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये कट्टे गए 1 की इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होंगी है, माइनस माइनस प्लस 1/2 इत्थे लगा लेना, ये इंटीग्रेशन होंगी है अपने को टैन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, प्लस की आएगा अपने को सी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड्स 9th क्वेश्चन भी इनवर्स क्वेश्चन है अपने को, 10th क्वेश्चन देखते हैं इस तो बाद। हुण 10th क्वेश्चन दे विच आपां करना की है, स्टेटमेंट इज साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर। हुण तुसीं कहोगे भी ये तो इक्को ही फंक्शन है अलजैब्रिक किहड़ा वा ते ट्रिग्नोमैट्रिक किहड़ा, इहनूं आपां लिखांगे 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर नाल डी एक्स, 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 इत्थे अलजैब्रिक फंक्शन नूं रिप्रजेंट कर रहा है, ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स वाला अपना फर्स्ट हुंदा ते ये वाला अपना सैकेंड हुंदा, तो हुण अपने कोल फार्मूला की सी साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटैग्रल डी डी एक्स किहदा करना आपां, साइन इनवर्स एक्स दे होल स्केयर का करना डी डी एक्स आपां, ठीक है जी, इंटैग्रल किहदा कर रहे हैं आपां इत्थे 1 डी एक्स का, तो आउटसाइड की आएगा डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर, ये एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन कितनी होंगी है एक्स माइनस, इत्थे डेरीवेटिव करांगे आपां इहदा, पहला तो 2 अगे आएगा, ठीक है जी, तो फिर कितना आएगा इत्थे साइन इनवर्स एक्स आ जाऊगा, ओवर की आऊगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, तो यदी इंटीग्रेशन कितनी आऊगी अपने को इत्थे एक्स आएगी, नाल इत्थे अपने को की आएगा डी एक्स। सो हुण अपने को बन गया यही इदां दा फंक्शन। हुण तुसीं की करोगे इत्थों, हुण तुसीं इहदे च की करना, हुण तुसीं इस क्वेश्चन के साइन इनवर्स एक्स ये उपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, क्योंकि एक तो अपने को आ टर्म होगी, आह तो आह वाली टर्म, ठीक है, तो एक अपने को आह वाली टर्म होगी, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप दोबारा ये अप्लाई कर देंगे। जे तुसीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना ना इत्थे, तो साइन इनवर्स एक्स नूं टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इदां साइन इनवर्स एक्स नूं टी पुट कर दो, उत्थों 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर डी एक्स जो है वो डी टी बन जूगा, तो इत्थों एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जूगी अपने को, एक्स की वैल्यू आ जूगी अपने को साइन टी, ठीक है, तो ये फंक्शन अपने को की बन गया, ये बन गया एक्स साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर माइनस 2, जो 2 इत्थे सीगा, इत्थे साइन इनवर्स एक्स नूं तुसीं की पुट कीता सी टी पुट किया, तो आ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साइन टी, ये हो गया टी साइन टी डी टी। हुण टी साइन टी डी टी के उपर तुसीं दोबारा फार्मूला लगा के भी इनू अगे कंप्लीट कर सकते हो, ये ज़्यादा बैटर है तो ज़्यादा ईजी रहेगा। नैक्सट क्वेश्चन सेम है, कॉस इनवर्स एक्स नूं टी पुट करके तुसीं सॉल्व कर सकते हो। उस तो नैक्सट जिहड़ा हैगा वा उत्ते भी आपां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जस्ट अ मिनट, नैक्सट लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, आईलेट के फॉर्मूले अकॉर्डिंग लॉगरिथमैटिक फंक्शन जो है वो पहला आता है, तो अलजैब्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन सैकेंड फंक्शन मन के तुसीं इस क्वेश्चन भी अपने तरीके नाल कंप्लीट करोगे। इस तो बाद राजे एक मैथड चेंज होंदा वा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 तो बाद हुण तुहानूं मैं एक रिजल्ट लिखवान लग्या, वो रिजल्ट नूं ध्यान नाल देखियो, बाकी दे क्वेश्चनस आपां उस रिजल्ट नाल सॉल्व करांगे। वो रिजल्ट आ ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट अपने माइंड च रखना वा भी जे थोड़े कोल फंक्शन आंदा वा भी ई दी पावर एक्स आ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ, मतलब फंक्शन पिया वा तो प्लस दे विच ही फंक्शन का डेरीवेटिव पिया, तो वह आप डायरैक्टली यही आंसर लिख सकते हैं। सो जिमें कि 16th क्वेश्चन आपको दिता होया, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये हैगा अपने को ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये चीज़ आपको दी हुई है डी एक्स के नाल। मैनू पता वा भी साइन एक्स का डेरीवेटिव कितना होंगे कॉस एक्स, तो आप की लिखांगे तो आंसर डायरैक्टली ई दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि इत्थे मेरा एफ एक्स आ वाला है प्लस इत्थे मेरा एफ डैश एक्स आ वाला दिता होया। सो इत्थों अपने क्वेश्चन की होंगे है कंप्लीट। ये तो सीगा सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, इदां दे क्वेश्चन की उम्मीद ना रखियो पेपर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है। बाकी आ भी सकता, कोई इन्नी वड्डी गल भी नहीं, जिस हिसाब नाल इस बार 1 नंबर वाले थोनों 36 के नियर अबाउट क्वेश्चन आने हैं, सो उस अकॉर्डिंग ये आ भी सकता है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, ये हैगा ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स द होल स्केयर, यदा इंटैग्रल करना। देखो हुण ये कुछ नहीं पता चल रहा भी किहड़ा फंक्शन किहदा डेरीवेटिव है या नहीं है,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਜੋ 1 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ dx ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x 1 ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਅੱਛਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ fx ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਡੈਸ਼ x ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆ fx ਆ ਕੀ ਆ f ਡੈਸ਼ x ਆ। e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡਡ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x over x plus 1 plus c. So 17th question is to be over here. 18th question is also a tricky question. 18th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x 1 plus sin x over 1 plus cos x। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ 1 plus cos x ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ x/2 ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ x/2 ਪਲੱਸ ਆਹ ਸਾਈਨ x ਨੂੰ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ/2 ਕਾਸ ਥੀਟਾ/2। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦੇ ਓਵਰ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ x/2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ x/2 ਪਲੱਸ ਕਾਸ x/2 ਓਵਰ ਕਾਸ x/2 ਓਵਰ ਕਾਸ x/2 ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਏਗਾ dx। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬਾਈ ਕਾਸ ਟੈਨ, ਕਾਸ ਬਾਈ ਕਾਸ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2 ex 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ x/2 ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦੇਣਾ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ x/2 ਪਲੱਸ 2 ਟੈਨ x/2 ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਵਿਦ dx। 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆ 1/2 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x 1/2 ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ x/2 ਪਲੱਸ ਆਹ 2 ਨਾਲ ਆਹ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਟੈਨ x/2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ dx, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ fx ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ f ਡੈਸ਼ x। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ex tan x/2 plus c. So this will be the answer of your this question. I hope so this question is also to be clear to you all. ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਆ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 20th 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x-3 ਓਵਰ x-1 ਕਿਊਬ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਇੰਟੈਗਰਲ dx। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x-2 -1 ਓਵਰ x-1 ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ dx। -3 ਨੂੰ -2 -1 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x-1 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ 2 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x x-1 ਓਵਰ x-1 ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ -2 ਓਵਰ x-1 ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ dx। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x 1 ਓਵਰ x-1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ -2 ਓਵਰ x-1 ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦ dx। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ 21 ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 22th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 22th ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 2x ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 2 ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਥੀਟਾ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ dx ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ
ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ डी थीटा, तो अपने को जो रिजल्ट आया वो की आया थीटा इंटू सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ MCQs ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.7 ਮੇ ਬੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਵਨਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ 7.7 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ 7.8 जस्ट अ मिनट, दैट इज़ अगेन लिमिट ऑफ सम। वो भी इस बार सिलेबस नहीं है। 7.7 एंड 7.8 बोथ आर नॉट इन योर सिलेबस। इस तो बाद अपने को आती एक्सरसाइज 7.9। 7.9 एक्सरसाइज जो है वो होगी डेफिनेट इंटैग्रल के उपर बेस्ड। सो लैट अस स्टार्ट डेफिनेट इंटैग्रल। डेफिनेट इंटैग्रल्स के विच जिन्ने भी क्वेश्चन आ वो आप करांगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम की है मतलब हूँ आपको -1 तो 1 एक लिमिट दी होया करूगी x+1 dx। तो इनू आपको सॉल्व करने लिखा है। इत्थे आके सी खत्म हो जाती है क्योंकि ये डेफिनेट है, मतलब ये कोई एक्सट्रा वैल्यू नहीं आ सकती। जो आऊगा डेफिनेट आऊगा तो एग्जैक्ट आऊगा। हूँ x+1 की इंटीग्रेशन आप सारे पता वा भी x² 2 + x होंगी है। इत्थे तुसीं लिखना -1 तो 1। तो फंडामेंटल अलजबरा जो है या फिर आप कहिए भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो अपन की मिलता भी पहला अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 1, इतने एक्स की जगह तो 1 पुट करोगे पहला, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट मतलब -1 पुट करोगे इतने एक्स की जगह पर, कुछ इस तरह। तो इस तो बाद तुम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे। ये कैलकुलेशन आ गई अपने को 3/2 माइनस इतने कितना आएगा 1/2 - 1 1/2 - 1 कितना होगा -1/2, मतलब यही प्लस द 1/2 हो जू 3/2 + 1/2 इट विल बी 4/2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। इस तरीके दे नाल तुसी इस डेफिनेट इंटैग्रल के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले के उपर बेस्ड है। कोई भी इंटीग्रेशन या कुछ भी इस चैप्टर के विच इस तरह का नहीं है जिहड़ी इंटीग्रेशन करवाने की जरूरत मैनू पवे भी थोनू, मतलब ना आती हो इंटीग्रेशन। इदा का कुछ नहीं। इंटीग्रेशन आप जिन्नी हुण तक पढ़नी सी आप पढ़ चुके हैं। इस तो बाद सिर्फ सिंपल आप सिर्फ लिमिट्स पुट करके क्वेश्चन नू सॉल्व करना। सो ये डेफिनेट इंटैग्रल की जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन जो डिफरेंट वो मैं जरूर करवाऊँगा। हुण थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। डायरैक्टली आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेटमेंट एक्चुअली वी हैव टू क्रॉस दिस क्वेश्चन नंबर 16 क्योंकि ये जेडे फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है, जेडे फॉर्मूले आप यूज़ करके क्वेश्चन करना सी वो फॉर्मूले थोड़े सिलेबस का हिस्सा ही नहीं हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 तो थोनू थोड़ी जी आज़ादी मिल जाती है भी तुसी क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो नहीं करोगे, ठीक है। उस तो बाद राजी जिन्ने भी ये क्वेश्चन है, जो थोनू किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो तुसी मैनू पूछ सकते हो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नथिंग एल्स, कोई प्रॉब्लम वाला कोई क्वेश्चन नहीं है ये। So let us continue with exercise 7.10. 7.10 exercise question करते हैं आप start. So first question of 7.10 exercise is, first question is x over x square plus 1 dx integral 0 to I think the limits are given us 0 to 1. Yes, 0 to 1 limits are given. देखो अपन पता है सबस्टिट्यूशन करनी होंगी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x² + 1 ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2x जो dx आएगा वो कितना आएगा dt। दिस इंप्लाइज x dx की वैल्यू जो है वो 1/2 dt आएगी अपने को। तो इत्थे अपने को रिजल्ट हो गया 0 to 1 1/2। इत्थे देखो इनू आप सारे टी पुट किया 1/t dt। तुसी चाहो तो लिमिट चेंज कर सकते हो, जो तुसी नहीं चाहते लिमिट चेंज करनी है तो ना करो, तो भी अपना क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो सकता है। तो लिमिट जो नहीं चेंज करनी है ना तो लिमिट्स पुट करनिया ने एक्स के विच बाद दे विच जो फंक्शन च टी की जगह तुम एक्स रखोगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इट विल बी अ log t 1/2 आउटसाइडेड लिमिट्स हैगियां ने 0 to 1। तो टी की वैल्यू कितनी है x² + 1 इट विल बी 1/2 log ऑफ x² + 1। तो इतने लिमिट्स आएंगी अपने 0 to 1। पहला 1 पुट करोगे तो log 2 आऊगा, ठीक है। जो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा अपने को log 1। इतने कितना आएगा 1/2 आएगा इतने अपने को आउटसाइडेड log 2 log 1। अच्छा log 1 की वैल्यू कितनी होंगी है 0, तो 1/2 log 2 ही अपने को एग्जैक्टली इसका आंसर आऊगा। सबस्टिट्यूशनस करी जानिया ने, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाने ने।
इस एक्सरसाइज ਵਿੱਚ प्रॉब्लम तो कोई नहीं है वैसे। चलो सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 0 to π/2 इंटैग्रल है, अंडर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ साइन फी इंटू कॉस रेज टू पावर 5 पी फी एंड डी फी। ठीक है, इनू ਆਪਾਂ सॉल्व करना, तो इनू ਹੁਣ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, साइन फी ਨੂੰ टी पुट करना ਪਊਗਾ, ऑब्वियस जी गल। ठीक है, बट उस तो पहला थोड़े चेंजिज कर लेने हैं। 0 to π/2 अंडर रूट ਦੀ साइन फी है, इनू नहीं चेंज कर सकते। कॉस फी ਨੂੰ मैं लिख सकता ਹਾਂ कॉस 4 फी इंटू कॉस फी डी फी, तो इनू मैं की लिख सकता 0 to π/2 अंडर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ साइन फी, तो कॉस स्केयर थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते ਹੁੰਦੇ 1 माइनस साइन स्केयर फी, तो एक ਜਿਹੜਾ स्केयर ਉੱਪਰ शिफ्ट कर देने ਇੱਥੇ कॉस फी एज इट इज़ ਦੇ ਨਾਲ डी फी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ साइन फी ਨੂੰ टी पुट करांगे, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ साइन फी ਨੂੰ टी पुट करांगे इट मस्ट इंप्लाइज कॉस फी डी फी जो है वो अपना डी टी बन जूगा। ठीक है, हुण ये क्वेश्चन मैं थोड़ा उपरला क्वेश्चन करवाया सी लिमिट्स चेंज ना करके, तो हुण जिहड़ा यही क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा करवाऊँगा लिमिट्स नूं चेंज करके। सो उस बिहाफ के उपर इस क्वेश्चन नूं हुण आपां किवें सॉल्व करांगे वो देखो, लिमिट्स किवें चेंज होंदियां ने वो भी सीखो। जदों साइन फाई मतलब फी थोड़ी 0 आ, साइन 0 0 हुंदा तो टी कितना आ जाऊगा 0, इत्थे लिख लो इफ फी इज़ इक्वल टू 0 तो टी भी इक्वल टू की हो गया 0। इफ फी इज़ इक्वल टू π/2, जे फी की वैल्यू π/2 है, दिस इंप्लाइज जो अपने को टी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इतने π/2 रख दो, साइन π/2 कितना होंगे 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो अपने को लिमिट्स आ गई 0 to 1। इतने देखो इन्हों मैं टी पुट किया तो टी रेज टू पावर 1/2 1 माइनस टी स्केयर की पावर स्केयर, इतने ये चीज़ बचेगी कॉस फी डी फी मेरा की बन जाएगा डी टी बन जाएगा। इस तो अगे की इंटीग्रेशन नहीं मैं करन लग्या, वो इंटीग्रेशन तुसी खुद ट्राई करनी है तो खुद ही सॉल्व करनी। नैक्सट क्वेश्चन भी तुसी खुद ट्राई करोगे, जिहदे जिहदे हिंट तुहानूं NCERT क्वेश्चन दिते हुए ने वो हिंट के अकॉर्डिंग तुसी वो क्वेश्चन नूं सॉल्व करते जाना। जे किसी भी क्वेश्चन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 6 से क्रॉस लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलरली क्रॉस लगाऊंगी, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7th क्वेश्चन है थोड़े सिलेबस, तो 7th क्वेश्चन नूं करना किवें है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 वो है dx ओवर, आपने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो हैगी है dx ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है जी, इस इक्वल टू इंटैग्रल -1 to 1 दिता होया, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 5 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ठीक है जी, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ dx ओवर x प्लस 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ प्लस 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x प्लस 1 ਨੂੰ टी पुट करन जा रहे हैं, दिस इंप्लाइज dx किहदे इक्वल आएगा dt, तो -1 तो 1 जो लिमिट है वो चेंज करनी है। हुण जो आप इत्थे -1 पुट किया तो t की वैल्यू 0 आ जाऊगी, तो जो 1 पुट करूँगा तो t की वैल्यू 2 आ जाऊगी, तो 0 to 2 हो गया। इत्थे अपने को हो गया 1 ओवर टी स्केयर प्लस 2 का स्केयर dt। ठीक है जी, यदि इंटीग्रेशन कितनी होंगी है आपां नूं ऑब्वियसली पता है 1/a मतलब 1/2 टैन इनवर्स x ओवर 2, x कितनी है इस बार अपनी t है, तो वो कितनी आएगी इत्थे t ओवर 2। लिमिट्स कितनियां ने 0 to 2, हुण t की फॉर्म जी तुसीं लिमिट्स नूं पुट कर सकते हो, यू विल गैट योर आंसर π/8। सो 7th क्वेश्चन कुछ इस तरह का सी। 8th सिंपल है, 8th क्वेश्चन के की करना आप 2x नूं टी पुट करके सॉल्व करांगे। सो वो देखते हैं इस तो बाद। हुण तुहानूं इस क्वेश्चन च लगता होना वा भी ई दी पावर एक्स आ ते फंक्शन आ, फंक्शन का डेरीवेटिव पिया उदा सॉल्व कर लाँगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा उदा नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपां नूं पहलां 2x नूं की पुट करना पैना इहदे विच t, क्योंकि उत्थे ई दी पावर x हुंदी है कल्ली, तो इत्थों dx की वैल्यू 1/2 dt आ जूगी अपने कोलों। ठीक है, तो लिमिट्स कितनियां चेंज होणगियां, t की वैल्यू 2 to 4। लिमिट्स किवें चेंज होंदियां ने मैं प्रीवियस क्वेश्चन से दस चुका, तो हुण इहनूं लिखना की ये बनेगा तुहाडे कोल 2/t माइनस 2/t स्केयर इंटू ई रेज टू पावर t dt। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੁਸੀਂ कॉमन ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ आउटसाइडेड, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 1/2 ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल हो जाऊगा, तो की बचे अपने को 1/t प्लस माइनस 1/t स्केयर, इदा लिख लें आप ई रेज टू पावर t dt। हुण तुसीं इस क्वेश्चन नूं वो जिहड़ी थ्योरम मैं तुहानूं पढ़ाई सी f' प्लस fx वाली वो लगा के इहनूं सॉल्व कर सकते हो। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ क्वेश्चन सॉल्व होगा। MCQ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, MCQ 9 की है अपने को इंटैग्रल 1/3
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ। x ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 dx। ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1/3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ। ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਥੀਟਾ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ d ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਚੂਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ cos ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡਡ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1/3। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੂ, ਅੰਦਰ ਬਚੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਈਨ 4 ਥੀਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ, ਇੱਕ cos ਥੀਟਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਆਊਗਾ d ਥੀਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ ਪਿਆ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਮਿਟਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3 ਥੀਟਾ, cos ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5/3 ਹੋ ਜੂਗਾ ਥੀਟਾ ਇਹ, ਓਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ d ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1/3 ਤਾਂ 6/3 ਸੌਰੀ 5/3 ਹੋ ਜੂਗੀ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਈ ਹੈ cos 5/3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਟੋਟਲ cot 5/3 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ cot ਥੀਟਾ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ d ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇ dt ਬਣੇ। ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟ cot ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਯੂ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਯੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡੀ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ 2√2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਗਰਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 2√2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਚੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ, ਟੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/3 dt। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਫ 6। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਅਰ ਯੂਅਰ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਿਡ। ਆਫਟਰਵਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੇਸਡ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ P1 P2 P3 P4 ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ P7 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ NCERT ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ 21 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 0 to a f(x) dx। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 0 to a f of a minus x dx। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ P3 ਜਾਂ P4 ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ NCERT ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ i ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0 to π/2, ਇੱਥੇ π/2 ਹੈ, cos π/2 ਮਾਈਨਸ x, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਆਏਗਾ dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 to π/2 cos π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
साइन एक्स तो आ जो स्केयर इतने आ जाएगा नाल आएगा अपने को डी एक्स। ठीक है, हुण तुसीं की करना, आई कॉल इट 1 एंड आई कॉल इट 2। सिंपली ऐड 1 एंड 2, आई प्लस आई कितना हो जाएगा इतने 2i इज इक्वल टू इंटैग्रल 0 टू π/2 कॉमन कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स वो 1 होंगे तो नाल आएगा डी एक्स। तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होंगी है एक्स, लिमिट्स की ने 0 टू π/2, π/2 पुट करोगे तो π/2 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाना अपने को। तो मतलब अल्टीमेटली ये π/2 हो गया। आ जो 2 है इधर डिवाइड होकर इन्हों कितना बनाएगा π/4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को π/4। सो ये सीगा तुहाडा पहला क्वेश्चन सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड जो कि ईजी भी सी। ठीक है जी, वैसे इस कॉस स्केयर थीटा के क्वेश्चन को तुम डायरैक्ट भी कर सकते हो जो दूसरे फॉर्मूले लगा के आप हुण तक इंटीग्रेशन किया, जरूरी नहीं भी प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 2 की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो इस एक्सरसाइज का वो की है अपने को इंटैग्रल 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स नाल की है डी एक्स। तो ये आप लिमिट्स में पुट करा की रिजल्ट बनेगा, देखो ये आई है इज इक्वल टू दिस वन, दिस इंप्लाइज आई इज ऑल्सो इक्वल टू कि इक्वल आएगी P4 प्रॉपर्टी द्वारा अप्लाई कर रहे हैं। इतने आ जाएगा अपने को साइन π/2 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स नाल कितना आएगा डी एक्स। तो ये रिजल्ट आई का की बन गया अपने को, ऊपर बन गया अपने को कॉस एक्स तो नीचे अपने को बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट्स के विच ही इंटैग्रल डी एक्स 0 टू π/2। इनू 2 मान लो, इनू 1 मान लो, 1 तो 2 आपस की करा ऐड, तो इधर आ जाएगा अपने को 2i इज इक्वल टू इंटैग्रल 0 टू π/2 1 डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन कितनी होंगी है एक्स, लिमिट्स है 0 टू π/2, π/2 पुट करोगे उधरों भी 2 आएगा, तो आई की वैल्यू फिर अपने को कितनी आ गई π/4। ये सीगा तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन, बहुत ईजी। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, यही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा फोर्थ है वो भी सेम प्रॉपर्टी के नाल सॉल्व होएगा। लेट अस सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने को की है इंटैग्रल -5 टू 5 एक्स प्लस 2 का मॉडुलस डी एक्स। यदा ब्रेकिंग पॉइंट किहड़ा वा -2, ऑबवियस आ मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -5 टू -2 एक्स प्लस 2 यदी वैल्यू नैगेटिव आएगी डी एक्स के नाल, प्लस -2 तो लैके फिर आप 5 तक लिखांगे तो उत्थे फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, नाल की है डी एक्स जो आप +1 च मॉड दी डेफिनेशनस पढ़ के आए हैं उन्होंने डेफिनेशन के उपर बेस्ड क्वेश्चन सी। इस तो बाद तुसीं इंटीग्रेशन करोगे, सेम ही नैक्सट मॉड वाला क्वेश्चन है। इस तो नैक्सट जो क्वेश्चन है वो गल करते हैं आप हुण ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੀ नहीं, सेम प्रॉपर्टी ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। क्वेश्चन नंबर 7 की गल कर रहे हैं इंटैग्रल 0 टू 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n डी एक्स। तो आप आई की लैट करांगे, इनू आप आई लैट करांगे, देयरफॉर आई की वैल्यू एक होर कितनी आएगी P4 अप्लाई करने तो बाद एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 इत्थे उवें ही है, माइनस एक्स की जगह तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स यदी पावर n है नाल कितना डी एक्स। तो ये रिजल्ट की बनया 1 माइनस एक्स, इत्थे 1 नाल 1 कट्टिया गया, एक्स की पावर कितनी रह गई n विद डी एक्स। बस इस तो बाद इन्हों अंदर मल्टीप्लाई करके आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट अपने को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट इज 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x डी एक्स। ये चीज़ अपन दी हुई है। तो सोल्यूशन के लिए आप आई की वैल्यू जो आप P4 ये भी P4 ही अप्लाई होनी है, तो आई अपने को एक तो ये हैगी है, देयरफॉर आई P4 अप्लाई करने तो बाद जी आई बनूगी 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स डी एक्स। tan a माइनस b का फॉर्मूला थोड़ा आंदा होना, तो वो लगेगा इत्थे, ये हो जाऊगा 0 टू π/4, इत्थे हैगा अपने को लॉग, तो इत्थे 1 प्लस इत्थे आ जाऊगा tan π/4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan π/4 tan x ते नाल कितना आएगा आउटसाइडेड डी एक्स। ठीक है, tan π/4 1 होंगे, 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x आ गया। तो ये बनया अपने को 0 टू π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x ओवर 1
सॉरी 1 माइनस टैन एक्स ओवर 1 प्लस टैन एक्स। तो यदा आप एलसीएम सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, इतों एलसीएम करांगे तो उपर अपने को बचेगा सिर्फ 2, तो नीचे कितना आ जाएगा अपने को 0 टू पाई बाय 4, इतने आएगा अपने को लॉग ऑफ 2 ओवर 1 प्लस टैन एक्स तो नाल कितना आएगा डी एक्स। हुण इस तो अगे सोल्यूशन देखो यदा, नैक्सट आप की करना, इतने लॉग एम बाय एन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो हो जाएगा अपना 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टैन एक्स। देखो 1 प्लस लॉग ऑफ टैन एक्स जो है वो आई होंगे, तो ये आई बन गया, एक आई इधर पई है एक आई इधर पई है, आई प्लस आई इधरली साइड हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटैग्रल 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 डी एक्स। लॉग 2 कॉन्सटेंट आ तो बाहर आ जाऊगा, एक्स की 1 की इंटीग्रेशन कितनी होंगी एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी फिल करोगे पाई बाय 4 लॉग 2 इक्वल्स टू 2i, तो जो 2i इधर डिवाइड हो जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी अपने को पाई बाय 8 लॉग 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। इस तरीके आप क्वेश्चन सॉल्व करना सी। नैक्सट इज एन ईजी वन क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू ऑल। लास्ट आप देखते हैं हूँ आप नैक्सट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन को करने का तरीका की है, क्राइटेरिया की लगाना है, तो भी आप P4 ही होंगे। P4 लगाने तो पहला आप इनू आई का नाम देवांगे, उस तो बाद आप इसे आई को आप लिखांगे 0 टू पाई बाय 2 2 लॉग ऑफ साइन एक्स, इनू आप एज इट इज लिखांगे माइनस लॉग ऑफ साइन 2x में आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, ये चीज़ आप लिखांगे तो इतने आउटसाइडेड की है डी एक्स। इस तो बाद आप लिखांगे 0 टू पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स, ये चीज़ आ गई अपने को माइनस इतने देखो लॉग एम एन ओ की प्रॉपर्टी लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, बाहर की आएगा अपने को डी एक्स। ये जो इन सबट्रैक्ट कर देंगे 0 टू पाई बाय 2, इतने अपने को बचा लॉग साइन एक्स, एक तो लॉग साइन एक्स बचा माइनस अपने को की बचा लॉग कॉस एक्स बचा, तो माइनस का की बचूगा लॉग 2 बचूगा, इतने कि आऊगा डी एक्स। हूँ इनू 1 मान लो, ये उपर जो ये चीज़ बनी है ना, इतने आप P4 लगावे। देखो जो P4 लगाओगे ना तो साइन एक्स ने कहते चेंज हो जाना, देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखांगे, इतने भी पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखांगे, तो P4 देयरफॉर P4 तो बाद जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग 2 से कोई चेंज नहीं आना, आउटसाइडेड की आऊगा डी एक्स। इनू मान लो 2, इन्होंने दोनों जो ऐड करोगे आ कॉस एक्स माइनस का प्लस का कट्टेगी, साइन एक्स माइनस का प्लस का भी कट्टेगी, आ ऐड हो जाएंगे तो 2i जो है इक्वल आएगा माइनस का 2 लॉग 2 डी एक्स। तो लिमिट्स है ने 0 टू पाई बाय 2, आ 2 नाल 2 को कट्टिया गया अपने को लॉग 2 बाहर आ जाऊगा, लॉग 2 बाहर आ गया नाल नैगेटिव साइन आ गया ये, तो पाई बाय 2 इतने आ जाएगा एक्स की जगह पर। ठीक है जी, तो ये है थोड़ा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तो बाद जो तुम सॉल्व करना तो माइनस में उपर लै जाओ, तो ये हो जाएगा लॉग 1 बाय 2। ठीक है, तो आ जो पाई बाय 2 अगे लिख दो, बस ये बुक के नाल दा आंसर मैच होंदा हो जाएगा। इतने आके थोड़ा ये क्वेश्चन भी खत्म है। अगला राजी साइन स्केयर एक्स आ, वो देखते हैं भी उत्ते किहड़ी प्रॉपर्टी लगा के आप ईजी वे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2 आ, इतने अपने को हैगा वा साइन स्केयर एक्स विद रिस्पैक्ट टू डी एक्स। तो इनू आप किमें सॉल्व करांगे वो देखते हैं भी किस तरीके आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हुण देखो अपने को एफ एक्स जो है मैं उन्होंने लिख ला भी साइन स्केयर एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो आएगा वो कितना आएगा साइन स्केयर माइनस एक्स, तो वो कितना होंगे अपने को माइनस इतों शिफ्ट होकर अगे आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स द होल स्केयर, तो ये कितना आऊगा साइन स्केयर एक्स इक्वली आऊगा स्केयर करके। मतलब यह एक ईवन फंक्शन है, जो कोई फंक्शन ईवन फंक्शन है प्रॉपर्टी आपको दी हुई है बुक के, तो आप लिखांगे 0 टू पाई बाय 2 लिखा देंगे, 2 अगे आ जाना होंगे, तो इतने बचूगा अपने को साइन स्केयर एक्स डी एक्स। साइन स्केयर एक्स से हूँ वो फॉर्मूला लगावे 0 टू पाई बाय 2 2 अगे अपने को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 वाला डी एक्स। तो यू हम इंटीग्रेशन करनी थोड़ा आती हुई है, तो सिंपल वे के नाल इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इनू सॉल्व कर सकते हो। इस तो नैक्सट आता वा क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ अनदर डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यूनीक ने। 0 टू पाई एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया।
नाल dx इक्वल टू इनू आपां लिखांगे P4 लगाने तो बाद I इज इक्वल्स टू दिस वन दिस इंप्लाइज I जी हैगी उन्होंने इक्वल टू 0 टू पाई x माइनस पाई ओवर 1 प्लस साइन x माइनस पाई सॉरी पाई माइनस x आना सी इत्थे इत्थे चेंज कर दें पाई माइनस x ठीक है। तो ये की बनूगा अपने को 0 टू पाई बनूगा साइन पाई माइनस एक्स तो एज इट इज़ लिख लिया नीचे अपने को की बनया इतने 1 प्लस साइन एक्स यही बनूगा तो नाल कि आ जाऊगा डी एक्स इनू तो इनू प्लस कर दो इनू मान लो 1 तो इनू मान लें आप 2 प्लस करांगे तो 2i की वैल्यू कितनी आएगी अपने को देखो एक्स नाल एक्स उपरों कट्टिया जाना पाई बचूगी पाई की है कॉन्सटेंट नंबर है तो उन्होंने मैं बाहर कढ़ ला 0 टू पाई नीचे की बचा मेरे को 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स ठीक है इत्थे मैं हूँ 1 माइनस साइन एक्स एक अपने को लगाया तो एक मैं 1 माइनस साइन एक्स इत्थे अपने को लगाया डी एक्स कट्टे ही जाएंगे ना आपस तो इनू आप लिखांगे पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ इत्थे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कितना होंगे कॉस स्केयर एक्स तो 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स कितना होंगे सीकेंड स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स कितना होंगे सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स जो कि आप प्रीवियस बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन अप्लाई कर चुके हैं तो इतने डी एक्स कल्ले कल्ले की इंटीग्रेशन आपको पता फिल करके तुम आंसर कढ़ सकते हो। 13th क्वेश्चन ईवन ऑड फंक्शन के उपर बेस्ड है 14th सेम ईवन ऑड क्वेश्चन के उपर बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी 15th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन के आप आई की वैल्यू आपको दी हुई है ठीक है तो आप देयर फोर आई लिख के जो P4 अप्लाई करांगे साइन एक्स ने कि चेंज होना अपने को क्लीयर कट कॉस एक्स तो कॉस एक्स ने कि चेंज हो जाना साइन एक्स नीचे साइन एक्स कॉस एक्स अल्टरनेट ने तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं ठीक है। हाँ जी इस तो बाद इंटैग्रल 0 टू पाई बाय 2 देखो राजी कॉस ना कॉस कट्टिया जा रहा साइन नाल साइन तो जो आप ऐड करांगे ऐड करन तो बाद अपने को जो बचेगा वो बचेगा 0 टू पाई बाय 2 0/1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स तो 0 सारा कुछ ही 0 होंगे सो 0 हो गया आंसर। सो ये क्वेश्चन इतने अपना कंप्लीट हो जाता। नैक्सट फिर अपना P4 के उपर बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो सो ये देखते हैं आप क्वेश्चन 16th क्वेश्चन देखो 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हैगी अपने को 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ dx थोड़ा ਲੈਂਥੀ क्वेश्चन ਆ मतलब ईजी है ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है अपना तो इत्थे आप पहला P4 अप्लाई करांगे तो वो होएगा 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट च कॉस की होंगे नैगेटिव तो ये बन जूगा अपने को 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इनू मान लो 2 तो ए वाली मान लो 1 दोनों ऐड कर दो जो ऐड करोगे तो 0 टू पाई आएगा इतने अपने को 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई ऐड करने तो बाद इतने अपने को रिजल्ट आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स तो आउटसाइड की आएगा अपने को डी एक्स लॉग लगा लो इतने लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी की लॉग एम बाई लॉग एम सॉरी प्लस ऐड किया ना आप लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी होंगी लॉग एम इंटू एन तो इतों 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स हो जाऊगा डी एक्स तो लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स कितना होंगे साइन स्केयर एक्स 2 अगे ले आवांगे 2 नाल 2 कट्टिया जाऊगा दिस इंप्लाइज आई की वैल्यू इक्वल आऊगी 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये आ गई अपने को आई की एक नवी वैल्यू हूँ आपको पता है साइन पाई माइनस एक्स कितना होंगे साइन एक्स होंगे ठीक है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे साइन पाई माइनस एक्स जो पाई है मतलब साइन जो अपने को एफ एक्स जो है वा वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल आ जाए मतलब साइन एक्स तो साइन पाई माइनस एक्स जो है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स दोनों सेम ने तो इस इंटैग्रल में आप लिख सकते होंगे 0 टू पाई बाय 2 2 अगे आ जाऊगा प्रॉपर्टियां के मैंशन है बेटा देख सकते हो साइन इत्थे कितना आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स ठीक है हाँ सॉरी इत्थे अपने को कल्ला साइन एक्स लिख लेने आप डी एक्स ये उपर आप P4 अप्लाई करांगे तो वो कितना आएगा आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन
पाई बाय टू माइनस एक्स इत्थे डी एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स मतलब 2 इंटैग्रल 0 टू पाई बाय टू, इत्थे आएगा कॉस एक्स डी एक्स नाल लॉग पे अपने को। तो इन्हों दोनों हुण आपां की करांगे ऐड, तो ये रिजल्ट अपने को की बनेगा 2i इज इक्वल टू 2 इंटैग्रल 0 टू पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी दोबारा इत्थे आपां अप्लाई करन तो पहला थोड़ा जिहा इहते चेंज करांगे, करनी है पहला कर सकते, पहला ही कर दो अप्लाई, लॉग एम इंटू एन लग जूगी। तो इत्थे अपने को टू नाल टू तो कट्टिया गया, आई की वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। माइनस इत्थे एक मैं प्लस लॉग टू लिख ला तो माइनस लॉग टू लिख लेना, नाल की कर दूंगा डी एक्स। इन्होंने दोनों की प्रॉपर्टी लगूगी तो ये बनूगा लॉग ऑफ साइन 2x, 2x किमें बनया क्योंकि लॉग एम इंटू एन, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनूगा, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होंगे, तो लॉग ऑफ साइन 2x बन गया, माइनस की बनूगा अपने को लॉग 2। ये चीज़ आ गई आई इज इक्वल टू इंटैग्रल 0 टू पाई बाय टू, नाल की आऊगा आउटसाइड जो अपने को डी एक्स आऊगा। हुण तुसीं 2x नूं इत्थों टी पुट करना है, ठीक है, पुट कर दो 2x इक्वल टू टी, तो डी एक्स जो है वो कि इक्वल आएगा 1 बाय टू डी टी के इक्वल। तो यह प्रॉपर्टी की बनेगी अपने को 0 टू पाई बाय टू, जस्ट अ मिनट 1 बाय टू आएगा इत्थे अपने को, इत्थे आएगा लॉग ऑफ साइन टी, लॉग ऑफ साइन टी आऊगा माइनस पाई बाय टू लॉग ऑफ 2, ठीक है जी, ये चीज़ बनेगी अपने को। तो लॉग ऑफ जो साइन टी है इत्थे 0 टू पाई आ जाऊगा अपने को लिमिट, तो वह अपने को आई की वैल्यू आ, तो ये हो जाऊगा अपने को दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल्स टू 1 बाय टू आई, ठीक है जी, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस द पाई बाय टू लॉग 2। ये लिमिट्स पुट करने तो बाद ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने तो बाद अपने को आया, इत्थे लिमिट्स चेंज होनियां सी ना, तो चेंज करके 0 टू पाई आनियां सी इत्थे लिमिट्स, तो वो आई बन जाना, आई इधर आके सॉल्व हो जाऊगा अपने को 1 बाय टू, 1 माइनस 1 बाय टू कितना होंगे 1 बाय टू आई इज इक्वल्स टू माइनस द पाई बाय टू लॉग 2, तो आ 2 नाल 2 भी कट्टिया गया, माइनस द पाई लॉग 2 अपने को की आ गया रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपने को जे यही अपने को की है लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 18 मॉड वाले आप डिस्कस कर चुके हैं, 19th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, वो देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ भी तुसी इस चीज़ में ये इक्वल प्रूव करके दिखाना है, आ चीज़ा आपको गिवन ने, ठीक है। तो पहला तो आप P4 अप्लाई करांगे डायरैक्टली, ये अपने को आई आ, तो आई देयर फॉर P4 अप्लाई करने तो बाद एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो जी ऑफ ए माइनस एक्स, इदा लिख सकते हैं आप 0 टू ए डी एक्स। इन्होंने दोनों कर दो तुसी, देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है एफ एक्स, तो इत्थे रिप्लेस कर दा 0 टू ए, इत्थे आएगा एफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एनू तो एनू कर दो प्लस, तो ये बनेगा अपने को 0 टू ए एफ एक्स मैं जो कॉमन कड्डी, तो अंदर मेरे को की बचिया एक तो जी ऑफ एक्स पिया वा, तो प्लस एक क्या वा जी ऑफ ए माइनस एक्स आऊगा आउटसाइड डी एक्स, यदी वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है अपन, आई प्लस आई किया तो इधर 2i आ गया, 2i इज इक्वल्स टू इंटैग्रल 0 टू ए एफ एक्स, तो यदी वैल्यू कितनी है 4, वो 4 मैं आउटसाइड लिख लिया, आ 2 नाल 2 भी कट्टिया 4 भी कट्टिया गया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही आप शो करना सी, तो यही आंसर है। ये थोड़ा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस तो बाद जो 2 MCQs ने कोई प्रॉब्लम आऊगी डिस्कस करांगे, वैसे प्रॉब्लम वाली कोई अप्रोच है नहीं गी अप्रोच। सो इत्थे आके थोड़ा चैप्टर इंटैग्रल ਜਿਹੜਾ है पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਸੇਜ ਮੀ, you can text your question, click a photo of your question and text me. I will explain that question in a proper manner. Till the timing, thank you and have a good day.